Good evening, friends. Welcome back to the channel. I'm Suresh Kumar Devangan, your friend. I'm here with few notes for your limited departmental examination for vice principal. I hope you're all ready, friends. I am a bit late to give you this one. Today we are going to take from admin and finance part FR and SR rules. Already you have studied for your principal and vice principal examination. For the direct examination, we are going to take today FR, SR revisional part, not the detailed one. TA rule, LTC rules, and school budget. These four things we have taken into consideration today, and we will be going ahead. Friends, as you already know, the examination is going to be conducted by CBSE with the help of NTA National Testing Agency for Tier 1. It will be 60 marks objective, 10 marks, 10% descriptive. Overall, it will be 100 marks for 2.5 hour examination. Friends, the best part is that there is no negative marking. No negative marking is there. So you are all advised to attempt all the questions. Even if you feel that this may be the right answer, don't leave that. That may be negative for you if you leave it. Here we are going to discuss the pinpoint facts, rule number, particularly asked so far in NTA examination from the NTA perspective, and numerical hotspot also I am going to give you in this video. अंत तक बने रहिए दोस्तों. Definitely this video is going to be very useful for you. This I guarantee. You can subscribe the channel for further revisional material and for the mock interviews as well. Now, this is 11-page document where the four topics that I have told you I am going to discuss. The very first page is fundamental and supplementary rules, FR, SR. We will discuss the scope and the definitions. कौन-कौन से part में क्या-क्या दिया गया है, we are going to discuss. As far as exam hotspot is concerned, FR came into force on 1st of January 1922, as you already know. It was made by the President under the Article 309 for the Constitution. And then what about SR? Supplementary rule. Supplementary rule is equal to orders issued by government to supplement FR, fundamental rules. To supplement the fundamental rule, supplementary rules are given. This you know very well. इसको दो भागों में मैंने किया है. पहले ये तैयार कर लिया था, फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स और कुछ दोस्तों ने भी सजेस्ट किया है जो मेरी इस रिवीजन क्लास में मदद करते हैं. They have given their suggestion and their suggestions were included. So I'll be giving you 2 pages differently. So key definitions की हम बात करते हैं. FR9 जो है, it is mostly or most frequently asked. दोस्तों इसमें दो कॉलम मैंने बनाए हैं. दोनों कॉलम को आप विशेष रूप से देखते जाएंगे. तो as I told you, fundamental rule 9 is most important for you. And now 9 has got different parts. Different parts are there in section 9. So that we will be discussing. We will discuss about FR 921A first of all. It talks about what is the term pay. Now, what is pay? Pay includes basic pay plus NPA only. It does not include DA, HRA or any other allowances. Remember, it does not include any of the allowances. Now, special pay जो होता है, special pay, if it is given on the name of pay, it will be included. If it is given for personal benefits, for personal qualification, on the name of allowances, then it will not be included. आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं. एक रफ नोट है आपके लिए कि पे, ओवरसीज पे और स्पेशल पे ये इंक्लूड किया जाएगा if it is pay. But in case special pay, if it is an allowance, then it will not be included. So no need to be confused at all. FR 9(5) की हम बात करते हैं. It talks about the compensatory allowances. What is compensatory allowances? See, allowances for personal expenditure due to special duty circumstances. It includes TA. It excludes sumptuary allowances. What is sumptuary allowances? In other words, you can call it entertainment allowance. For example, hospitality allowance. Hospitality allowances. बड़े बड़े जो अधिकारी आते हैं उन पर अगर कुछ खर्च होता है उनके विजिट पे, उनके हॉस्पिटैलिटी पे, that is known as sumptuary allowances, and it is excluded.
रिमेंबर, इट इज नॉट कॉल्ड कंपनसेटरी अलाउंस। एवरेज पे की हम बात करते हैं, इट इज डिस्कस्ड इन FR 96, एवरेज मंथली पे अर्नड ड्यूरिंग 10 मंथ्स प्रीसीडिंग रिटायरमेंट और लीव। ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स के समय जो काउंट किया जाता है 10 मंथ्स का सैलरी, उस समय पर इस एवरेज पे का कैलकुलेट किया जाता है, जिसका वर्णन FR 96 में किया गया है। आप इसके डिटेल भी पढ़ सकते हैं। FR 97 talks about foreign services. If you are in foreign service, pay received from source other than consolidated fund of India with government sanction. With the sanction of the government, if you are receiving something other than the consolidated fund of India, that is known as foreign service, and it is mentioned in FR 97. 7 for foreign, you remember it. Now, lien. Now, title of a government servant to hold a substantive or regular post. If you are holding a regular post, that is substantive, that is lien. Lien के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त जो KVS के हैं, आज के डेट में जो EMRS में प्रिंसिपल है, उन्होंने डेफिनेटली क्या लिया हुआ है? लियन लिया हुआ है। So that is lien, आप अच्छे से जानते हैं इसे। 919 talks about the officiate. What is officiating? Performing duties of a post on which another person holds a lien. अगर कोई लियन पे गया हुआ है और वो पोस्ट आपको दे दी गई है, आप उसको ऑफिशिएट कर रहे हैं, that is all. So 927 talks about subsistence grant. Grant word use किया है मैंने। Subsistence grant, monthly grant to a government servant not receiving pay or leave salary. In case of suspension, you know very well. Now 928 discusses about substantive pay. Pay excluding special pay, excluding, not including, excluding special pay, personal pay or emoluments classed as per president, as pay classed as pay by president. दोस्तों, इनफैक्ट को आप सुन रहे होंगे, कानों में कुछ तो जा रहा होगा। Something will be there and it will remind you. एक बार मैं फिर से बता दूं, I am not teaching you FR and SR. I am just revising FR, SR, particularly 9, which is most frequently asked. ध्यान रखें दोस्तों, it is not all FR, SR. It is just a revision material for you all. Now, FR 931, time scale pay. What is time scale pay? Pay that rises by periodical increment from minimum to maximum. That is discussed in 931. Critical rules for examination. हाँ, यहाँ पे देखिए मैंने 4 कॉलम बनाए हुए हैं। ये चारों कॉलम आपको बहुत मदद करेंगे, पर्टिकुलरली जब आप शुरू करें इसे पढ़ना, तो सबसे अंतिम कॉलम जो है, उस अंतिम कॉलम को देखिए आप ध्यान से, वहां पे लिखा हुआ है ऑन योर राइट हैंड साइड, exam signal. What is exam signal? It is very common or it is always asked, it is frequently asked, like this comment have been given. और ये ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, काफी रिसर्च के बाद में इस पर ये कमेंट लिखा गया है। Now FR 11, whole time. What is whole time? Whole time of a government servant is at the disposal of the government. इसलिए हम बोलते हैं we are 24/7 servant. Can be employed in any manner without claim for additional रेन्यूमरेशन। जरूरी नहीं आपको कोई एडिशनल वर्क दिया जाए तो उसका एडिशनल आपको रेन्यूमरेशन दिया जाए। इट इज डिस्कस्ड इन FR 11. इट इज वेरी कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम सिग्नल के नाम से मैंने लिखा है। लियन रिटेंशन इज डिस्कस्ड इन FR 13, जिसके लिए आप फॉर्म 10A और 10B भरते हैं। जिन दोस्तों ने लियन लिया है उन्हें यह पता होगा, या आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप लियन ले, अगर EMRS में आपका सिलेक्शन होता है या जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होता है और आप KVS के हैं, वाइस वर्सा भी आप उसे कर सकते हैं। लियन रिटेंशन, लियन रिटेन्ड व्हाइल ऑन लीव, सस्पेंशन, फॉरेन सर्विस, होल्डिंग टेम्पररी और ऑफिशिएटिंग पोस्ट और ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम ऑन ट्रांसफर. It is frequently asked, my dear friend. Now FR 15 says lower post transfer. Yes, for reason. Transfer to a lower paying post prohibited. Except, वैसे तो नहीं किया जाता, it is prohibited except in the cases of inefficiency या misbehavior. इस कारण से as a punishment you can be transferred to a lower post, or written request by the employee. Employee himself is promoted as PGT, but he requests that no, I want back my previous post. Likewise, in that case it is done.
and it is mentioned in FR 15. डाइज नॉन, जिसकी चर्चा मैं अपने पुराने वीडियो पे, जो डिटेल्ड वीडियोस है, उस पर मैं कर चुका हूं। दोस्तों यदि आप रिवीजन के दृष्टिकोण से इसे पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इफ यू वांट टू रीड इट इन डिटेल ऑन FR/SR GFR 2017 के नाम से वीडियो बना हुआ है, जिसे आप बहुत दोस्तों ने उसे पसंद किया है, and lots of comments are there that it is a commendable video, so you can go through and you can find it. It is all available in the playlist. चलिए बात करते हैं आगे। FR 17 डाइज नॉन, willful absence not regularized as leave. willful यदि absence है जिसे रेगुलर लीव के रूप में रेगुलराइज नहीं किया गया है, that is known as डाइज नॉन. no pay, no increment, break in service used for regularized स्ट्राइक पीरियड ऑल्सो, ये है डाइज नॉन, जिसकी चर्चा FR 17 में की गई है। FR 22B1 पे फिक्सेशन आर प्रमोशन, टीजीटी से आप पीजीटी बनते, पीआरटी से टीजीटी बनते, पीजीटी से वाइस प्रिंसिपल बनते, तो पे फिक्सेशन होता है। पे फिक्सेशन इज आल्सो डन इन द केस ऑफ पे रिवीजन. सो ऑप्शन टू फिक्स पे फ्रॉम डेट ऑफ प्रमोशन, दैट इज नोन एज डेट ऑफ प्रमोशन और डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट DNI. इट इज बेस्ड ऑन द एम्प्लॉइज चॉइस. वो आपसे फॉर्म भराया जाता है, ऑप्शन फॉर्म भराया जाता है, और उसका मेंशन किसमें किया गया है? FR 22B1 में किया गया है। FR 26 टॉक्स अबाउट द इंक्रीमेंट. देख लेते हैं इंक्रीमेंट क्या है। ऑल ड्यूटी इन टाइम स्केल काउंट फॉर इंक्रीमेंट. फिर से मैं बता दूं, ऑल ड्यूटी इन टाइम स्केल काउंट फॉर इंक्रीमेंट, ज्वाइनिंग टाइम, लीव एक्सेप्ट extraordinary leave without medical certificate also count, and annual increment 1st January or 1st July after 6 months of service. ये सारी चीज, ये वेरी कॉमन है, ये परीक्षा में पूछा ही जाता है। और ये सब कहाँ चर्चा किया गया इसका? FR 27 में। FR 44 की ओर आगे बढ़ते। FR 44 क्या है? कंपल्सरी कंपनसेटरी अलाउंस की बात करता है। मस्ट बी रेगुलेटेड सो दैट इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट टू द रेसिपिएंट. प्रिंसिपल एमसीक्यू के रूप में जरूर इसे पूछा जाता है। डिसमिसल या रिमूवल की बात FR 52 में की गई है। डिसमिसल क्या है, रिमूवल क्या है, दोनों आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पे एंड अलाउंसेस सीज स्टॉप फ्रॉम डेट ऑफ डिसमिसल आर रिमूवल. आपका पे अलाउंसेस सारा कुछ बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिसमिसल आर रिमूवल. इसकी चर्चा कहाँ की गई है? FR 52 में की गई है. इसे भी आप पढ़ ले, इसे भी आप अच्छे से रिवाइज कर ले. FR 53 discusses about the suspension. Subsistence allowance is payable during suspension. Rate it is 50%. मैंने कल वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में ही बताया था. It will be enhanced by 25%, बढ़ के 75% भी हो सकता है. It can be reduced to 25% depending on conduct and behavior that you show. अगर वो एम्प्लॉय की तरफ से डिले हो रहा है, वो प्रस्तुत नहीं होता है, तो वो घटा भी दिया जा सकता है. और यदि ऑफिस की तरफ से डिले हो रहा है और आपका सस्पेंशन पीरियड बढ़ाया जा रहा है, तो सब्सिस्टेंस अलाउंस को बढ़ाया भी जा सकता है. बहरहाल हम चर्चा कर रहे हैं FR 53 की. सस्पेंशन के बारे में डिस्कस किया गया है. न्यूमेरिकल के रूप में इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया जा सकता है. सस्पेंशन. अब दोस्तों मेरी बातों को लाइट नहीं लेंगे, रिवीजन को बहुत अच्छे से करेंगे. आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन के अगर कैंडिडेट रहे हैं, नहीं भी रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा most of the questions have been asked from the document that we have shared, that has been asked from the ebook that we have shared. So you must take the thing seriously. काफी कुछ रिसर्च के बाद में चीजों को आपके सामने लाया जाता है, उसमें भी गलतियां संभव है. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इट इज ऑल फ्लॉलेस. few problems, few data may be wrong, misinterpreted, so that you can show in your comment so that further we can clarify it, और बाकी सारे दोस्त जो पढ़ रहे हैं उसे भी इनका क्लैरिफिकेशन मिल जाए. चलिए FR 56 की बात करते हैं. रिटायरमेंट एज की बात करता है. ग्रुप ABC तीनों के लिए 60 ईयर्स है, और ये बेसिक फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए. ज्वाइनिंग टाइम 105. FR 105 ज्वाइनिंग टाइम की बात करता है. इसे नोट कर ले, इसे अच्छे से याद कर ले. एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं. ज्वाइनिंग टाइम FR 105. ज्वाइनिंग टाइम FR 105. रिमेंबर, ज्वाइनिंग टाइम FR 105 स्पीक्स अबाउट इट. ज्वाइनिंग टाइम क्या है? अब मैं ये जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ, हो सकता है आपके समझ में ना आए, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. 6 days प्रिपरेशन.
प्लस 1 डे पर 1000 किलोमीटर बाय रेल और बाय एयर। ये इसका फॉर्मूला है। मैक्सिमम 30 डेज आपको हो सकता है, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 डेज हो सकता है। अगर सेम स्टेशन में आपका ट्रांसफर हो रहा है तो आपको एक दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। इफ चेंज ऑफ रेसिडेंस हो रहा है तो, और चेंज ऑफ रेसिडेंस भी नहीं हो रहा है तो आपको एक दिन का भी ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे दोस्तों कि सर हमको तो ये पता है कि 10 दिन होता है, 12 दिन होता है, 15 दिन होता है ज्वाइनिंग टाइम, तो फिर ये 30 डेज वाला क्या कंसेप्ट है, ये 6 डेज वाला क्या कंसेप्ट है, एक्सप्लेन करता हूँ। कीप पेशेंस। देखिए ज्वाइनिंग टाइम फॉर्मूला क्या है, प्रिपरेशन डेज 6 होता है प्लस 1 डे पर 1000 किलोमीटर राउंडेड अप, तो पूरा किलोमीटर कैलकुलेट किया जाएगा। अभी मैं और डिटेल से बताऊंगा। मैक्सिमम ये 30 डेज हो सकता है। एग्जांपल, अ वाइस प्रिंसिपल इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू गुवाहाटी। दिल्ली टू गुवाहाटी डिस्टेंस इज 2500 किलोमीटर। 6 डेज उसको प्रिपरेशन मिला, 3 डेज उसे और मिला, तो टोटल कितने डेज एडमिसेबल होगा, 9 डेज एडमिसेबल होगा। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, लेट मी टेक यू टू माई रफ नोट। इस रफ नोट में चलते हैं। देखिए इधर ये ज्वाइनिंग टाइम, एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम, ये मैंने आपके लिए लिखा है, आप ध्यान से इसे पढ़ें और क्लियर हो जाएगा चीजें आपको। मैंने आपको पहले भी कहा है दोस्तों, मैं काफी रिसर्च के बाद में आपके सामने आता हूँ, हड़बड़ी में कभी भी आपके सामने मैं प्रस्तुत नहीं हुआ हूँ, और इसीलिए शायद कई बार वीडियो लाने में लेट भी हो जाता हूँ। तो एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम कैन बी ग्रांटेड अप टू मैक्सिमम 30 डेज बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये जो पेज है, इट इज स्वामीज पेज। स्वामी को हम अपना संविधान भी कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। एंड बियॉन्ड 30 डेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 30 दिन से अभी आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो दैट डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट द टोटल शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 डेज फॉर प्रिपरेशन प्लस रीजनेबल ट्रांजिट टाइम प्लस हॉलीडेज इफ एनी फॉलोइंग। ये रूल नंबर 5 कहता है। खैर, ये आपको समझ में आ गया कि 30 डेज का भी रूल है, ये स्वामी की हैंडबुक कह रहा है। बाकी हमें कैसे ज्वाइनिंग टाइम मिलता है उसे आप इससे समझिए। देखिए इधर, यदि 1000 किलोमीटर या लेस है तो ज्वाइनिंग टाइम 10 दिन मिलता है हमको, और इसमें भी यदि आपको 200 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रेवल बाय रोड करना पड़ता है तो वो 10 डेज इनहेंस होकर कितना हो जाता है, 12 डेज हो जाता है। यदि मोर देन 1000 एंड अप टू 2000 किलोमीटर है, लेस देन 2000 किलोमीटर है, तो भी वो कितना दिन होगा, 12 डेज होगा। और यदि उसमें 200 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा आपको बाय रोड करनी पड़ती है तो ज्वाइनिंग टाइम कितना हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा। आप डेफिनेटली अपना टिकट प्रस्तुत करेंगे तो वो टिकट से क्लैरिफाई हो जाता है कि यू हैव ट्रेवल्ड बाय एयर, बाय रेल और बाय रोड। इफ इट इज मोर देन 2000 किलोमीटर तो भी वो 15 दिन होता है, लेकिन ये 15 दिन भी ये स्टार दिया हुआ है। अब स्टार का क्या मतलब है, इन केस आप ट्रेवल बाय एयर 2000 किलोमीटर से ज्यादा है लेकिन आप बाय एयर टिकट ट्रेवल कर रहे हैं तो मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम एडमिशन इज 12 डेज ओनली। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप 15 दिन लेते हैं और यदि कोई प्रिंसिपल बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द रूल आपको 15 दिन दे देता है, ऑडिट ऑब्जेक्शन आता है तो उसे 12 में कन्वर्ट किया जा सकता है, तब आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रूल है। 15 डेज आपको तभी मिलता है इफ इट इंक्लूड्स मोर देन 200 किलोमीटर ट्रेवल बाय रोड। आई होप फ्रेंड्स इट इज ऑल क्लियर। यदि बहुत ज्यादा क्लियर हुआ है, आपको कुछ नया मिला है, प्रेस द लाइक बटन इन द वीडियो एंड डू कमेंट। टेक अ पॉज फॉर अ सेकेंड इन द वीडियो, मेक कमेंट कि यस सर दिस इज न्यू थिंग फॉर अस दैट वी लर्न टुडे, और एनीथिंग दैट यू लाइक। जब जब आपको अच्छा लगता है यू कैन प्रेस लाइक बटन एंड यू कैन पुट योर कमेंट सो दैट इट इज easier for the other friends to understand it. आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये था FRSR के बारे में जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता था। बाकी FRSR आपने अपने स्तर पर पढ़ाई कर ही लिया होगा। बात करते हैं टीए रूल की। कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज है, क्या है टीए, इट इज कंपनसेटरी रिम्बर्समेंट। आपका एक्चुअली कंपनसेटरी रिम्बर्समेंट है, पेड फॉर ऑफिशियल ड्यूटी ट्रेवल। इट इज पेड फॉर ऑफिशियल ड्यूटी ट्रेवल। कॉन्स्टिट्यूशनल रूल या बेसिस की हम बात करें तो ये आर्टिकल 309 आप पढ़ेंगे जब आप, तब मिल जाएगा आपको। FRSR में इसका जिक्र मिल जाएगा। और हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट 7th CPC 2017 के बाद में। ये उसका इंटाइटलमेंट है जो सबको पता होगा, मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बिजनेस क्लास और AC फर्स्ट क्लास एयर 14 प्लस के लिए है, 12 to 13 के लिए इकोनॉमी एयर है, AC फर्स्ट क्लास है, 9 ग्रेड शामिल हो जाता है, इकोनॉमी एयर और AC फर्स्ट क्लास।
6 to 8 के लिए AC सेकेंड क्लास ट्रेवल इज इंटाइटल्ड, एंड 5 एंड बिलो AC थर्ड एंड चेयर कार इज इंटाइटल्ड। माइलेज की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसे मिस प्रिंट क्या कहें, दिस इज द ओल्ड वन, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। कार आउट, क्योंकि अभी हमारा DA हैज इनहेंस मोर देन 50%, तो फिर से 25% बढ़ गया है, तो इट हैज बिकम 30 रुपीज किलोमीटर एंड 15 रुपीज किलोमीटर, नोट कर ही सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। It is admissible when no rail, bus, personal vehicle use and certificate is duly given by. It is mentioned in SR Supplementary Rule 46 as well. चलिए, इस पर अच्छी खासी बहस छिड़ी हुई थी दोस्तों के बीच में। ये if you own a car, it will always be given, but the principal and judici, they have their own rules and audit objection also come. Therefore, you take permission, prior permission, and if it is prior permission is taken, then there is less problem for you to reimburse it. Transfer TA, frequently asked question, transfer TA, CTG, composite transfer grant, it is 80% of the basic. इसके लिए न्यू टर्मोलॉजी जो यूज होती है आजकल, वो 80% यूज करने के बजाय आजकल 4/5 ये यूज किया जाता है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझा दूं, 4/5 कहो आप द 100%, तो ये बात तो वही होती है, ये 20 बार और 24 जा 80, so 80% CTG कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इज सैंक्शनड टू यू। गोल्डन टाइमलाइन की हम बात करते हैं, TA इज रिम्बर्समेंट नॉट एन अलाउंस। 7 CPC रिमूव्ड फिक्स्ड DA स्लैब एंड माइलेज अलाउंस इज यूनिफॉर्म, इट इज 30 रुपीज एंड 50 रुपीज, करेक्शन कर लेंगे यहाँ पे। इंटाइटलमेंट डिपेंड्स ऑन द पे लेवल। TA में बस इतना ही विशेष है दोस्तों, और कोई बहुत ज्यादा इसमें बताने जैसी बात नहीं है। TA कंपनसेटरी है, DA जो है रिम्बर्समेंट होता है, माइलेज जो है 30 और 40 है, और CTG जो है 80% है, दैट इज 4/5, दिस लैंग्वेज विल बी यूज्ड। TA रूल में बस इतना ही याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं, लीव ट्रेवल कंसेशन की बात करते हैं। बेसिक जो रूल लिए गए हैं वो लीव ट्रेवल कंसेशन 1988 है, जो कोर प्रोविजन है वो 1988 ही है। चलिए इसको समझते हैं। ब्लॉक ईयर और इंटाइटलमेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। होम टाउन LTC ब्लॉक टाइप हो गया। ड्यूरेशन 2 ईयर ब्लॉक, तो 26-27 चलेगा। 1 पर ब्लॉक, अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एवरी ईयर। इंटाइटलमेंट की हम बात करें, 4 भागों में बांटा है हमने, पहले ब्लॉक टाइप लिया है, फिर ड्यूरेशन लिया है, फिर करंट ब्लॉक लिया है और इंटाइटलमेंट लिया है। इन 4 भागों के अलावा और कोई इसमें प्रश्न नहीं बनते हैं। ऑल इंडिया की हम बात करते हैं तो 4 ईयर का ब्लॉक होता है, तो 26 से 29 चलेगा। उसमें 2 होम टाउन होंगे और 2 एनीवेयर इन इंडिया होंगे। इस प्रकार से ओवरऑल 4 होम टाउन, या फिर आप 4 होम टाउन ले सकते हैं। फ्रेश रिक्रूटी फर्स्ट 8 ईयर, 4 ईयर का ब्लॉक होगा उनका। 3 ओकेजन एज होम टाउन एंड 1 एज एनीवेयर इन इंडिया। ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल होता है विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक। तो वो जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा किसी का कैरी फॉरवर्ड वो किस पे होगा, 2030 पे होगा। ओनली 1 ऑल इंडिया LTC कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, ऐसा नहीं कि आपने 2 बार नहीं लिया तो दोनों बार कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एलिजिबिलिटी एंड फैमिली डेफिनेशंस की बात करते हैं, जो कि रूल नंबर 3 पे दिया गया है। इंक्लूडेड इन फैमिली, नॉट इंक्लूडेड इन द फैमिली, सिंपल सा 2 कॉलम बना दिए गए हैं। एक तरफ राइट का निशान लगा हुआ है, एक तरफ रॉन्ग का निशान लगा हुआ है। तो चलिए पहले इंक्लूडेड इन द फैमिली की बात कर लेते हैं। स्पाउस डिटेल्ड वीडियो LTC पे 3 वीडियो है दोस्तों। आप LTC लिखेंगे इंग्लिश विद देवांगन सर में, या देवांगन सर इंग्लिश प्रिपरेशन फॉर प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, तो उस कॉलम में आपको ये आसानी से मिल जाएगा। हम आगे बात करते हैं दोस्तों। जस्ट गिव मी अ मिनट, टिल देन यू रीड द फैक्ट इंक्लूडेड इन फैमिली, नॉट इंक्लूडेड इन फैमिली। जस्ट गिव मी अ मिनट। दोस्तों, तो इंक्लूडेड इन फैमिली, स्पाउस ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड, माइनर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग स्टेप एंड अडॉप्टेड चिल्ड्रन दे आर इंक्लूडेड,
डिपेंडेंट अनमेरिड डॉटर्स, नो एज लिमिट फॉर अनमेरिड डॉटर एंड डिपेंडेंट। डिपेंडेंसी की क्या परिभाषा होती, आप अलग से उन वीडियोस पे देख सकते। अनमेरिड माइनर ब्रदर्स इफ पेरेंट्स आर नॉट अलाइव। विडो divorced daughter, wholly dependent, will also be included in a family. And step parents, wholly dependent step parents, they are also included in the family. Not included father-in-law, mother-in-law, they will never be included. Married son, because he is married means he is dependent. Married brother, he is married means he is dependent, even if parents are not alive. Parents of spouse, that is ultimately father-in-law and mother-in-law. Children of widowed daughter and sister, they are also not included, though the widowed daughter and sister included. Family residing at place other than headquarter for headquarter visit, they are not included. आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिपेंडेंसी इनकम, ये 9,000 रुपए है, हमने पहले बता दिया था। डियरनेस रिलीफ प्लस ऑल सोर्सेज। होम टाउन कैन बी चेंज ओनली वंस इन इंटायर सर्विस। एलिजिबिलिटी मिनिमम 1 year कंटिन्यूअस सर्विस इज रिक्वायर्ड टू टेक द एलटीसी। स्पेशल सिचुएशन की बात करते हैं, क्विक रेफरेंस, ये एनटीए के फेवरेट है, हर एग्जाम में लगभग पूछता है। एनटीए केवल वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा नहीं लेते। एनटीए इज ए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं लेता है। तो वहां से भी मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो भी दूसरी परीक्षा होती है जिसमें एलटीसी इंक्लूड होता है, वहां से भी क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। वहां से भी एनटीए को एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास किया है कि वो क्या क्या पूछ लेता है एलटीसी से, वो भी इसमें शामिल किया है। दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। अनमेरिड गवर्नमेंट सर्वेंट सिचुएशन है, एलटीसी का स्टेटस क्या होगा, होम टाउन एलटीसी एवरी ईयर। एग्जाम आंसर क्या होगा, एवरी ईयर, नॉट वंस इन 2 year। ये ट्रैप है, एग्जाम ट्रैप है। गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, उसका एलटीसी स्टेटस क्या होगा, नॉट इंटाइटल्ड टू एलटीसी। Suspension means no LTC, but the family member will be getting advantage of the LTC. They can enjoy because family members are not suspended. Only the government employee is suspended. LTC during leave preparatory to retirement, LPR जिसे हम कहते हैं, allowed subject to conditions. उसके conditions है, फिर से मैं कहूँगा, डिटेल्ड वीडियो में आप सब देख सकते हैं। It is allowed. LTC during maternity leave, yes, admissible. सो एग्जाम आंसर भी क्या होगा, यस। एलटीसी ड्यूरिंग कैजुअल लीव एडमिसेबल, लीव लेके ही आप जा सकते हैं। एलटीसी ऑन क्लोज्ड हॉलिडे विदाउट लीव, नो, बिना छुट्टी के आप एलटीसी नहीं ले सकते। मैंने कई उदाहरण से आपको समझाया था। सेकंड सैटरडे संडे छुट्टी है आपकी, फ्राइडे और किसी कारण से छुट्टी हो गई तो आप सोचे 3 दिन में मैं एलटीसी घूम के आ जाऊं कहीं, होम टाउन होके आ जाऊं कहीं, नो, विदाउट लीव एलटीसी इज नॉट अलाउड। ये बात मैं बार बार लाउडली आई हैव स्पोकन ऑफ दिस। एलटीसी ड्यूरिंग स्टडी लीव बोथ फॉर सेल्फ एंड फैमिली यू कैन अवेल and both are allowed. Fraudulent LTC claim pending proceeding अगर है तो cannot avail LTC till finalization of the result and it will be suspended till outcome. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो आप याद रख सकते हैं। ये नोट्स में जो लेके आ रहा हूँ वो आपको तब बेहतर समझ में आएंगे जब आपने डिटेल्ड वीडियो देखा है, जब आपने एलटीसी को कहीं से पढ़ रखा है, तब कहीं जाके ये रिवीजन आपके समझ में आएगा दोस्तों। और यदि आपने पढ़ाई ही नहीं की है या आप इसके डिटेल्स को नहीं जानते हैं और डायरेक्टली रिवीजन में बैठ रहे हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल फ्रेंड इन एनी ऑफ द केसेस। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आप समझदार है, वाइस प्रिंसिपल की परीक्षा दे रहे हैं और निकट भविष्य में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल जैसे पद को सुशोभित करेंगे। आपको अभी से बधाई, अभी से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते, हम कहाँ तक थे, मैटरनिटी लीव हो गया, कैजुअल लीव हो गया, क्लोज हॉलिडे हो गया, स्टडी लीव हो गया, फ्रॉडुलेंट हो गया। इफ फुली एक्सोनरेटेड आफ्टर फ्रॉड एलिगेशन, फ्रॉड एलिगेशन था आपके ऊपर, केस चल रहा था और फुली एक्सोनरेट हो गया, एक्सोनरेट यानी बाइज्जत बरी हो गया उस आरोप से, तो एडिशनल सेट इन फ्यूचर ब्लॉक्स, ये जो आपका स्टेटस है वो कंपनसेटेड किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय सिंगल स्कॉट अलाउड विथ कंडीशन, स्कॉट अलाउ किया जाएगा, उसके लिए भी कंडीशंस है। स्कॉट इज परमिटेड। होम टाउन इक्वल टू हेडक्वार्टर, नॉट एलिजिबल फॉर होम टाउन एलटीसी। यदि आपका होम टाउन हेडक्वार्टर ही आपका होम टाउन है तो आप एलटीसी, होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। नो होम टाउन एलटीसी विल बी गिवन। तो ये जो लिखा है वो तब तक समझ में नहीं है, अगर केवल पीडीएफ ये मिल जाता है आपको और पीडीएफ से पढ़ना चाहेंगे, समझ में नहीं आएगा दोस्तों। व्हेन
आई एम एक्सप्लेनिंग यू, दैट एक्सप्लेनेशन इज वर्थ फॉर यू। चलिए एलटीसी रूल, एडवांस, ईएल इनकैशमेंट, रिम्बर्समेंट और एयर ट्रेवल, इसकी बात कर लेते हैं। एलटीसी की ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। मैक्सिमम एडवांस अमाउंट 90% ऑफ एस्टिमेटेड फेयर बोथ ऑनवर्ड एंड रिटर्न, 90% वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। लीव कंडीशन क्या होगी? लीव मस्ट नॉट एक्सीड 3 मंथ्स, 90 डेज से ज्यादा की आप छुट्टी नहीं ले सकते फॉर एडवांस एलिजिबिलिटी। एडवांस फॉर ट्रेन जर्नी अर्लियर ड्रॉल, ये इस पे आप अच्छे से देख लीजिएगा, इस पे मैं बार बार चर्चा करता हूँ। पहले 125 था, फिर 60 हो गया, तो 65 डेज हो गया है। तो जो ट्रेन की एडमिसिबिलिटी है, ट्रेन रिजर्वेशन जितने दिन पहले होता है, इसके दो रूल है। पहले 4 महीना पहले होता था, तो 30 को 120 दिन, तो +5 करके 125 दिन पहले आप एडवांस ले सकते थे। फिर से ये रूल 60 पे हो गया, 2 महीने पहले रेलवे बुकिंग होने लग गई, तो आप 60 डेज 5 डेज पहले एडवांस ले सकते हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। टिकट प्रोडक्शन आफ्टर एडवांस ड्रॉल, आपने एडवांस ले लिया तो उसके 10 दिन में आपको टिकट का प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। 10 डेज फुल रिकवरी इफ नॉट प्रोड्यूस्ड, तो पूरा का पूरा रिकवरी होगा, और पेनल इंटरेस्ट भी उस पर लगेगा आपको। पेनल इंटरेस्ट ऑन अनयूटिलाइज्ड एडवांस 2% ओवर जीपीएफ इंटरेस्ट रेट, पेनाल्टी फिगर आस्क्ड इन एमसीक्यू। ये जो स्टार लगे हुए हैं, ये ऐसे स्टार नहीं लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि मुझे शौक आया और मैंने स्टार लगवा दिया यहाँ पे, नहीं दोस्तों, देयर इज some indication in that star। ये एग्जाम नोट है, आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, आपके अभी अभी की परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। क्लेम विदाउट एडवांस, तो विद इन 3 मंथ्स आप द रिटर्न जर्नी आप उसे सेटल कर सकते हैं विद इन 3 मंथ्स। क्लेम विदाउट एडवांस विद इन 1 मंथ ऑफ रिटर्न जर्नी, यू हैव टू सबमिट इट। अर्न लीव की बात करते हैं, बहुत क्लियर सा है, सबको आपको पता है 10 दिन से ज्यादा आप एक बार में नहीं ले सकते, और पूरे लाइफ टाइम में 60 दिन से ज्यादा, 60 डेज से ज्यादा आप, करियर लिमिट है ये, 60 डेज से ज्यादा आप नहीं ले सकते। फिर से बात करते हैं ईएल इनकैशमेंट पर एलटीसी ओकेजन, एक बार में आप कितना ले सकते हैं? 10 दिन ले सकते हैं, बहुत होम टाउन हो चाहे वो ऑल इंडिया एलटीसी, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैक्सिमम ईएल इनकैशमेंट इन इंटायर करियर 60 डेज, ये आपका पूरा करियर लिमिट है। मिनिमम ईएल बैलेंस आफ्टर इनकैशमेंट 30 डेज, मतलब आपके पास 40 है तभी आप 10 डेज लेंगे और 30 आपके पास बच जाएगा। मस्ट मेंटेन 30 डेज बैलेंस। इनकैशमेंट इंक्लूड्स पे प्लस डीए, इनकैशमेंट में आपके सारे एचआरए और ये टीए दुनियादारी नहीं मिलेगा आपको, केवल पे प्लस डीए मिलेगा। डज नॉट इंक्लूड एचआरए, सीसीए और टीए और ऑल अदर अलाउंसेस। एयर ट्रेवल इंटाइटलमेंट ऑन एलटीसी की हम बात कर लेते हैं, इसकी बात हम बार बार कर चुके हैं, इसे आप सीधा सीधा एक बार पढ़ लेंगे, मैं आपको समय दूंगा आपको पढ़ने की। लेवल 14 है, ग्रेड 1 है आपका, इकोनॉमिक क्लास, एयर कंडीशन, एयर इंडिया से या प्राइवेट से आप ट्रेवल कर सकते हैं। स्पेशल डिस्पेंशन जो दिया गया है आपको, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार एंड लद्दाख, एनी एयरलाइन और एनी क्लास 14 प्लस। If it is 12 to 13, grade 2 principal, economic class or any airline। 9 to 11 ग्रेड 3, वाइस प्रिंसिपल इस ग्रेड में आ जाते हैं, जो वाइस प्रिंसिपल की ग्रेड में आ चुके हैं वो आ जाते हैं। सीनियर पीजीटीज नॉट इंटाइटल्ड नॉर्मली एलटीसी बाय एयर, एंड इकोनॉमिक क्लास टू नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड लद्दाख, ओनली दे कैन ट्रेवल। इवन द पीजीटीज ग्रेड 8 लेवल 8 पीपल, दे आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर नॉर्मल एलटीसी एयर, आप नॉर्मल प्लेसेस पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट रीजन आप जा रहे हैं तो यू आर अलाउड विथ ड्यू सैंक्शन। लेवल 5 एंड बिलो ग्रेड पे टीजीटीज एंड पीआरटीज, द पीपल दोज हु कम इनटू इट नॉट इंटाइटल्ड नॉर्मली एंड इकोनॉमिक क्लास टू स्पेशल एरियाज ओनली। तो ये नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड लद्दाख स्कीम, ऑल एज ग्रुप इंक्लूडेड वाइस प्रिंसिपल पीजीटीज कैन ट्रेवल बाय एयर टू दीज एरियाज। स्कीम एक्सटेंडेड अप टू 25/9/2026 एज पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। LTC to foreign countries not allowed, daily allowances on LTC not admissible, only fare is reimbursed। ये सारा फैक्ट एंड फिगर्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों। बात करते हैं रिम्बर्समेंट रूल्स फॉर स्पेशल सिनेरियो। स्पेशल सिनेरियो में क्या क्या रिम्बर्स होता है, कैसे कैसे होता है। जर्नी बाय लॉन्गर रूट, तो रेस्ट्रिक्टेड टू शॉर्टेस्ट एंड चीपेस्ट रूट फेयर, आप कैसे भी घूम फिर के जाइए आपको वो शॉर्टेस्ट रूट ही देंगे और चीपेस्ट रूट देंगे। डिफरेंट क्लासेस यूज्ड फॉर जर्नी, हाँ
कई बार आप इंटाइटलमेंट से अब ट्रेवल कर लेते हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट प्रोपोर्शनल बेसिस एंड शॉर्टेस्ट रूट रेफरेंस विल बी रिम्बर्स्ड। राजधानी शताब्दी ट्रेवल ऑन एलटीसी की हम बात करते हैं दोस्तों। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें छांट के आपके द्वारा आपके लिए लाया गया है, तो लाइक तो बनता है और कमेंट भी बनता है। यदि आप कहते हैं कि आपकी मेहनत बची, आपको 10 बुक रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, यहाँ पे सब कुछ आपके सामने दे दिया गया है, ना केवल ये वीडियो एक्सप्लेनेटरी वीडियो मौजूद है, बल्कि इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ की लिंक भी मौजूद है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि हाउ आई कैन ज्वाइन योर व्हाट्सएप ग्रुप, तो व्हाट्सएप की लिंक भी इसमें दी गई है। 2 व्हाट्सएप की लिंक है, एक लिंक ऑलरेडी फुल है with whole capacity of 1025 members in it. Second group is open, you can click it and admin will approve it. चलिए दोस्तों, different classes used on journey, proportionate basis shortest route reference will be given। राजधानी शताब्दी हम बात कर चुके हैं। road journey, no public transport is available by the way, so maximum 100 km per stretch reimbursement, self certification, mileage वाली बात है। Circular to a ticket, actual fare are entitled class by shortest direct route, whichever is less that will be reimbursed to you। LTC via private airline must be through authorized agent, airline counter or website, जिसकी हम बॉमिन लॉरी अशोका ट्रेवल इसकी हम बात कर चुके हैं दोस्तों। सब्सक्राइब द चैनल फॉर केंद्रीय विद्यालय LDE लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन नोट्स if you want to get that you have always been getting ready at your hand. Comprehensive notes are these prepared by Devangan sir for all of you. Now scenario की हम बात करते हैं। Service tax, education cess on tickets eligible for reimbursement, but facilitation fee by travel agent, if you pay something to travel agent, that is not reimbursable to you। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमने अभी तक इस 37 मिनट्स के वीडियो में हमने रिवाइज कर लिया है FR, SR को, TA को और LTC को। अब हम एक पेज पे हम रिवाइज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्कूल बजट को, KVS स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस को लिखते हुए। फिर हम एक पेज में दोस्तों वीडियो पे बने रहें। इसका जो पेज नंबर अभी मैं बता दूं आपको, हम पेज नंबर 8 पे हैं। पेज नंबर 10 और 11 आर गोइंग टू बी मैजिक, और जो अभी यहाँ पे वीडियो छोड़ देंगे बाद में निश्चित रूप से पछताएंगे। पेज नंबर 10 and 11 are going to be magical for you, that is the extract of your whole examination। कोई बड़ी बात नहीं होगी उसमें से 10-12 क्वेश्चन यदि आ जाए। such important thing I am going to produce in page number 10 and 11। till then बने रहिए वीडियो पे, देखते रहिए, और यदि आपका कोई सजेशन है आप मुझे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताएं, निश्चित रूप से उसका पालन किया जाएगा, फॉलो करने का प्रयास किया जाएगा। की बजट कंसेप्ट और डेफिनेशंस की हम बात करते हैं। कैश बेसिस अकाउंटिंग होता है, कॉमर्स वाले दोस्त बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज को, लेकिन बाकी दोस्त जो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले हैं, उनके लिए भी कोई ये बहुत मुश्किल टर्म नहीं होगा कि आप उसे ना समझ पाए। कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है? ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड ओनली व्हेन एक्चुअल पेमेंट आर रिसीव्ड अकर्स। सैलरी पेड इन अप्रैल फॉर मार्च, सैलरी पेड इन अप्रैल फॉर द मंथ ऑफ द मार्च इज इक्वल टू बुक्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उसे कहाँ बुक किया जाएगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बुक किया जाएगा, भले वो सैलरी मार्च की क्यों ना हो, लेकिन पे तो आपने अप्रैल में ही किया है, तो नेक्स्ट सेगमेंट में वो जाएगा। प्रोग्राम बजटिंग क्या होता है? लिंक्स एक्सपेंडिचर्स विद एजुकेशनल आउटकम्स एंड मेजरेबल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जीरो बेस बजटिंग, जिसे ZBB कहते हैं, जीरो बेस budgeting, every expense must be justified from zero every financial year, no automatic continuation। ऐसा नहीं है कि इतना भाग आगे कंटिन्यू हो जाएगा, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ऐसा नहीं। रीअप्रोप्रिएशन, रीलोकेशन कह लीजिए आप, रीअप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम वन बजट हेड टू अनदर विद कंपिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल। आप अपने मन से नहीं कर सकते हैं, कंपिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से कर सकते हैं। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है, या अप्रूवल कैसे मिलेगा, उसकी डेट्स क्या होती है, इसके लिए आप प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल बजट नाम से एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं।
बजट एस्टिमेट्स बीई और रिवाइज्ड एस्टिमेट आरई, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। बजट एस्टिमेट्स क्या होता है? एस्टिमेट्स प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आप जो एस्टिमेट प्रोड्यूस करते हैं उसे बजट एस्टिमेट्स कहते हैं। और रिवाइज्ड एस्टिमेट किसे कहते हैं? रिवीजन ऑफ करंट ईयर एस्टिमेट बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर अप टू जुलाई। आपने पहले तो बना लिया, लेकिन जुलाई के पहले पहले आप उसमें रिवीजन करते हैं, दैट इज आरई। बजटरी कंट्रोल क्या होता है? कंटिन्यूअस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वर्सेस अप्रूव्ड बजट प्लस वेरिएंस एनालिसिस प्लस करेक्टिव एक्शन, इन सबको मिला के हम कहते हैं बजटरी कंट्रोल। आई होप दोस्तों मैं अभी तक आपको क्लियर हूं और मेरी बातें आपको स्पष्ट है। सोर्स ऑफ फंड इन केंद्रीय विद्यालय, हमारे केंद्रीय विद्यालय में फंड के सोर्सेज क्या क्या है? विवियन विद्यालय विकास निधि क्लास 9 to 12 बच्चों की फीस आती है। विवियन की फीस 500 रुपीज पर स्टूडेंट पर मंथ। इसे आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? लैब्स, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एग्जाम, सीसीए, फर्नीचर कैन नॉट बी यूज फॉर सैलरी। इस पैसे का इस्तेमाल आप सैलरी के लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकते। विवियन विद्यालय विकास निधि क्लास 6 to 8, इनकी जो फीस आती है 240 रुपीज पर स्टूडेंट पर मंथ। कंप्यूटर फीस इन ऑल अदर सेम एज अबव, नॉट फॉर सैलरी। गवर्नमेंट ग्रांट जो आता है एसएफ होता है, स्कूल फंड, एज सैंक्शनड बाय केवीएस या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सैलरी, पे, अलाउंसेज, आपका टीए डीए और भी दूसरी चीजें हैं, सीसी चाइल्ड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज एंड ऑल अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस, ये सब इसमें आता है। डेवलपमेंट हेड फ्रॉम केवीएस हेडक्वार्टर या आरओ से आपको जो ग्रांट आता है, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन वर्क आप कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट स्कूल से डिफर होता है। प्रोजेक्ट स्कूल में मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरी, पे, अलाउंसेज, ये सब कौन पे करता है? जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो पूरा प्रोजेक्ट का बेस होता है। अदर फाइन्स एंड ओल्ड आइटम्स, स्केल डोनेशन, यहाँ से जो फीस आती है एज पर रूल एंड कंडीशनल डोनेशन रिक्वायर केवीएस हेडक्वार्टर अप्रूवल। कोई कंडीशनल डोनेशन होता है वो आप डायरेक्टली नहीं ले सकते। ये रेड है, मतलब विशेष ध्यान देने की जरूरत है। विवियन कैन नॉट बी यूज फॉर सैलरी, पे एंड अलाउंसेज। विवियन कैन बी यूज फॉर लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एग्जामिनेशन, सीसीए एंड स्कूल फर्नीचर। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। बजट प्रिपरेशन टाइमलाइन की हम बात कर लेते हैं। की डेट्स, एग्जाम फेवरेट है, 5-6 डेट्स की हम बात करेंगे। आपको याद भी होगा 31 जुलाई क्या होता है? कंस्ट्रक्शन प्रपोजल्स, CS70 जो होता है, सेंट्रल स्कूल 70, CS70 sent to deputy commissioner by 31st of July. 16th of August is the date budget approved by विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी, BMC के द्वारा 16 अगस्त तक आप उसे अप्रूवल ले लीजिए। 31st August is the deadline for final approved budget sent to regional office KVS headquarter. 20th February is the date assesses final requirement for reappropriation, or 31st March all sanction expires, unutilized fund lapse except March and April salary. फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रिंसिपल्स केवीएस अकाउंट कोड आर्टिकल 183। दोस्तों यहाँ पे फिर से ये पुराना स्टेटमेंट है, इसीलिए इसे हम यहाँ पे खारिज करते हैं। इसके बदले आपको नया डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। चलिए देखिए, आर्टिकल 183C ऑफ केवीएस अकाउंट कोड इंटीग्रिटी पैक्ट की हम बात करते हैं। बहुत डिटेल में है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, आप अप्रिशिएट भी करेंगे इस एफर्ट को। आर्टिकल 183C क्या है? ऑफ द केवीएस अकाउंट कोड मैंडेट्स द यूज ऑफ इंटीग्रिटी पैक्ट आईपी एज अ स्टैंडर्ड क्लॉज इन ऑल द प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। जेम की बात कर रहा हूं मैं, जेम के थ्रू आप जो भी परचेसिंग करते हैं या किसी के भी थ्रू परचेस करते हैं। की रिक्वायरमेंट क्या है? मैंडेटरी इंक्लूजन द इंटीग्रिटी पैक्ट एज स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स 4 of KVS account code must be included in all procurement transactions, contracts, proposals and tender document. Monetary threshold क्या है? हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है। The requirement applies to procurement exceeding specific values. ₹3 lakhs for केंद्रीय विद्यालय, ये 5 लाख नहीं है दोस्तों, मिसकंसेप्शन। 3 lakhs for केंद्रीय विद्यालय, 5 lakhs for regional offices and zonal institute of education and training, ZIET जिसे हम कहते हैं ZEET एंड हेडक्वार्टर, उनके लिए 5 lakhs है और 3 lakhs केंद्रीय विद्यालय के लिए। पर्पस क्या है इसका? द पैक्ट इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट डिजाइन्ड टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेंट करप्शन।
ताकि करप्शन को रोका जा सके। इट रिक्वायर्स बोथ procuring entity, that is KVS, and the bidder to commit to ethical practices specifically. Now, principal KVS promises not to seek and ask illegal gratification, और bidder जो होगा वो क्या promise करेगा? Not to offer any bribe or illegal benefit to KVS officials and not to collude with other bidder. Collude means not to cooperate with other bidder, not to incorporate with other bidders. उनके साथ मिली भगत करके कुछ नहीं करेगा। तो ऑपरेटिव पीरियड क्या होता है इसमें? द पैक्ट इज बाइंडिंग फ्रॉम द इन्विटेशन ऑफ द बिड्स अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया। ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा ताकि आप इसका अध्ययन कर सके, आप इसका प्रिंट आउट ले सके। दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, GFR 17, RTI, CCS रूल एंड ऑडिट, इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या क्या है? GFR 17 की रूल्स फॉर स्कूल प्रोक्यूरमेंट, रूल नंबर 21, रूल नंबर 149, रूल नंबर 154, रूल नंबर 155। आई थॉट कि मैं इसकी आपसे चर्चा करूं, किसी न किसी एस्पेक्ट से मुझे ये इंपॉर्टेंट लगे। फाइनेंशियल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, रूल नंबर 21 बात करता है इसकी की प्रोविजन क्या है इसके? एक्सपेंडिचर नॉट प्राइमा फेसिया मोर देन ओकेजन डिमांड्स, नो अथॉरिटी टू सैंक्शन फॉर ओन एडवांटेजेस, नो प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक मनी। रूल नंबर 149 कहता है जेम मैंडेटरी थ्रेशोल्ड है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम्स प्रोक्यूरमेंट मैंडेटरी फॉर परचेज। अब ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, इसे ये इनहेंस हो गया है। डायरेक्ट परचेज की बात रूल नंबर 154 में दी गई है। डायरेक्ट परचेज अप टू 25,000 पर ओकेजन विदाउट कोटेशन, ठीक है। नाउ परचेज कमिटी मैंडेटरी फॉर प्रोक्यूरमेंट 25,000 टू 2,50,000, ये इंक्रीज हो गया है, इसकी हमने चर्चा की थी। इंपॉर्टेंट KVS गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल, क्विक रेफरेंस की हम बात करते हैं जी। इंपॉर्टेंट KVS गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल बजट के दृष्टिकोण से। आर्टिकल 76 अकाउंट कोड का, KVS अकाउंट कोड का 76 आर्टिकल क्या कह रहा है देख लीजिए। टॉपिक है आर्टिकल 76 अकाउंट कोड। रूल रेफरेंस कहां से लिया गया? KVS अकाउंट कोड से लिया गया। बजट हेड्स मस्ट करेस्पॉन्डेंस एग्जैक्टली विद हेड ऑफ अकाउंट। ग्रांट लैप्स रूल क्या है? ये अकाउंट कोड कहता है ऑल ग्रांट्स लैप्स ऑन 31 मार्च एक्सेप्ट मार्च एंड अप्रैल सैलरी। ऊपर जो बात कह चुके हैं उसी को दूसरे तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है। कंडीशनल डोनेशन को एक्सेप्ट नहीं करना है आपको, ये कहाँ बताया गया आपको? KVS अकाउंट कोड में बताया गया। कैन नॉट बी एक्सेप्टेड विदाउट KVS हेडक्वार्टर अप्रूवल। कंस्ट्रक्शन प्रपोजल, KVS अकाउंट कोड कहता है ओनली इफ लैंड इज एक्वायर्ड एंड लीज इज रजिस्टर्ड, तभी आप कंस्ट्रक्शन प्रपोजल देंगे। VMC पेंडिंग अप्रूवल क्या होता है? KVS सर्कुलर ऐसा कहता है कि इफ VMC नॉट येट अप्रूव्ड सेंड बजट विथ रिमार्क पेंडिंग VMC अप्रूवल। आप हेडिंग दे दीजिए पेंडिंग VMC अप्रूवल, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चूंकि VMC ने अभी अप्रूव नहीं किया है इसलिए आपने उस बजट को नहीं भेजा है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। नाउ प्रिंसिपल एज DDO, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। GFR कहता है प्रिंसिपल इज ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अथॉरिटी फॉर द स्कूल। चैप्टर 21 VBN की बात करते हैं, KVS अकाउंट कोड बताता है। गवर्न्स विद्यालय विकास निधि कलेक्शन, एक्सपेंडिचर एंड ऑडिट। ऑडिट ऑफ KVS 3 लेवल पे ऑडिट होता है। पहला इंटरनल ऑडिट, दूसरा कैग और तीसरा VBN ऑडिट। क्या है देख लीजिए। इंटरनल ऑडिट क्या है? KVS हेडक्वार्टर ऑडिट विंग होता है उसका, ये एनुअली साल में एक बार आपके KVS के ऑफिशियल्स आके ऑडिट करते हैं। ये रीजनल ऑफिस से टाई अप होता है, कहीं ना कहीं से इधर उधर से करते हैं वो आपस में। नाउ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, डायरेक्ट जनरल ऑफ ऑडिट एंड सेंट्रल एक्सपेंडिचर एज पर कैग मैंडेट, ऐसा ऑडिट होता है। और तीसरा VBN ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटेड बाय रीजनल ऑफिस कैन डू इट एंड दे डू इट एनुअल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। CCS रूल की प्रोविजन फॉर वाइस प्रिंसिपल एग्जामिनेशन, ये वो फैक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था पेज नंबर 9 और 10 में, जो मैं आपको देने वाला हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं इसे ना पढ़ूं बल्कि इस PDF को डायरेक्टली आपको दे दूं और आप इसे पूरा पढ़ें, क्योंकि 2 दिन का जो मैंने समय दिया था, एक CCS रूल वाला जो वीडियो था, कल वाला वीडियो, वो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए दोस्तों, उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि किस प्रकार से
क्या क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सीसीएस रूल 1965 की हम बात करते हैं। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्या है ये यहाँ पे दिया हुआ है। की प्रोविजन फॉर एग्जाम, ये इसके लिए आप मुझे थैंक यू बोलिए, बोलिए। की प्रोविजन फॉर एग्जाम, रूल और एक्ट यहाँ दिया गया है, सब्जेक्ट यहाँ दिया गया है, की प्रोविजन ऑफ एग्जाम यहाँ पे दिया गया है। देखिए दोस्तों, मैं केवल ये पढ़ रहा हूँ। सीसीए रूल की बात हमने की है। रूल्स 1965, डिसिप्लिन प्रोसीडिंग, फ्रेमवर्क फॉर पेनाल्टीज, डिसमिसल, रिमूवल, सस्पेंशन, आर्टिकल 311, सेफगार्ड्स, माइनर एंड मेजर पेनाल्टीज लिस्टेड। ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 में सर्विस कंडक्ट रूल जरूर पढ़ेंगे। प्रोहिबिट्स एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट 5,500 from others and without government approval, no joining of politics, no outside employment। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। सीसीएस पेंशन रूल 21 की हम बात करते हैं तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 की हम बात करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, सिटीजन राइट टू इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज, 48 आवर्स में लाइफ और लिबर्टी अगर मैटर हो जाए। सीपीआईओ जो है डेजिग्नेटेड होते हैं। फर्स्ट अपील विद इन 30 डेज, सेकेंड अपील टू सीआईसी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को मैं लाया हूँ क्योंकि ये रिविजनल वीडियो है। पॉस एक्ट की बात करते हैं, पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन है, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी आईसीसी मैंडेटरी, 10+ एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन होता है। कंप्लेंट विद इन 3 months ऑफ इंसिडेंट एंड इंक्वायरी विद इन 90 डेज। पॉक्सो की बात करते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, मैंडेटरी रिपोर्टिंग बाय स्कूल स्टाफ, स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेटेड। तो दोस्तों ये है मास्टर न्यूमेरिकल फैक्ट्स एग्जाम स्ट्रेटेजी हाई यील्ड चेकलिस्ट। ये वो 2 पेज हैं दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा था, पेज नंबर 10 एंड पेज नंबर 11। एफआर केम इनटू फोर्स कब आया भाई? 1 जनवरी 1922। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। सब्सिस्टेंस अलाउंस सस्पेंशन के दौरान कितना दिया जाता है? 50% ऑफ द लास्ट। चलिए याद कीजिए, और नहीं है तो कॉपी पेन लेके बैठिए, केवल सुनिए मत, केवल देखिए मत। देवांगन सर तो यहाँ से बता रहे हैं आपको, लेकिन आपका क्या काम बनता है? आपका काम बनता है किसी आप नोट करें, और नहीं तो वीडियो को पॉज करें, 1 मिनट का थिंकिंग दे, 1 मिनट का समय दे अपने आप को, सुने आप, समझे आप, दिमाग में बिठाएं और फिर आगे बढ़े। लेट मी गो अहेड फ्रेंड्स, एंड विद इन नेक्स्ट 5 minutes we are going to sum up this video. I hope this video is going to be very very beneficial to you, and now I am going to conclude। जिसकी बारे में मैंने बात की थी कि अंत तक आप वीडियो में बने रहिए, आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग और मैजिकल फैक्ट एंड फिगर लेके आने वाला हूँ। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगले 5 मिनट में हम क्या करने वाले हैं। देख लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को 2 पेज में आपके लिए समेटने का प्रयास किया गया। एंड हियर वी विल एंड विद आवर वीडियो। तो चलिए जल्दी जल्दी हम शुरू करते हैं। मैं बहुत जल्दी जल्दी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि फैक्ट एंड फिगर को आप सुन सके, आप थोड़ा सा उसे समझ सके, आप थोड़ा सा उसे याद रख सके, ताकि वो चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहला फैक्ट क्या है? मैं समझता हूँ आपको दिख रहा होगा, मेरी लाइन खींचने या बोलने की जरूरत नहीं है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज एफआर केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1922। इट इज ए हिस्टोरिकल फैक्ट जो कि आपको याद रखना है, इस फैक्ट को आपको याद रखना है। रिटायरमेंट एज की हम बात करते हैं, ऑल ग्रुप ए बी और सी 60 ईयर्स में आपका रिटायरमेंट होगा। ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये एफआर 56 में। एक मैंने छोड़ दिया, सब्सिस्टेंस अलाउंस सस्पेंशन के दौरान जो आपको मिलता है 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन पे प्लस डीए, ये एफआर 53 में इसका मेंशन किया गया। ज्वाइनिंग टाइम प्रिपरेशन डेज 6 डेज होता है, 10 डेज होता है, 12 डेज होता है, 15 डेज होता है, 2000+ किलोमीटर भी है तो भी आपका वो 12 डेज हो सकता है। क्यों हो सकता है? यदि आप बाई एयर ट्रेवल कर रहे हैं। जब तक आप बाई रोड ट्रेवल नहीं करते हैं तब तक वो 15 डेज में कन्वर्ट नहीं होता है। 15 डेज तभी, और मैक्सिमम ये कितना हो सकता है? 30 डेज। इन सबका जानकारी कहाँ दिया गया है? एफआर 105 में इसकी जानकारी दी गई। ज्वाइनिंग टाइम मैक्सिमम कितना हो सकता है? 30 डेज हो सकता है। ये एफआर 105 में दिया गया है, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। टीए क्लेम लिमिट टूअर की क्या लिमिट है? 60 डेज। और एसआर टीए रूल ट्रांसफर, टीए क्लेम लिमिट ट्रांसफर की 1 ईयर है, एसआर 116 में दिया गया। टीए क्लेम रिटायरमेंट 1 ईयर फ्रॉम द रिटायरमेंट, एंड टीए रूल के बारे में ये बात करता है। टीए डिसीज्ड ऑफिसर्स फैमिली डेथ, इन केस ऑफ डेथ
ऑफिसर्स फैमिली 6 months फ्रॉम द डेथ, ये टीए रूल इसकी बात करता है। सीटीजी कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट 80%, 4/5 का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है, जो कि आजकल मैंडेटरी और मैंडेटरी रूप से 4/5 का ही टर्मिनोलॉजी का यूज किया जा रहा है। SR 116 इसकी बात करता है। सीटीजी enhanced rate condition, if it is below 20 kilometer, change of residence is there, then 100%, it is more than 20 kilometer, change of residence is there, then 100% it will be given। 100% मतलब पूरा का पूरा 80% दिया जाएगा। SR 116 में इसकी बात की गई है, सप्लीमेंट्री रूल में इसकी बात की गई है। डेली अलाउंस की हम बात करते हैं, माइलेज की बात करते हैं, ये 30 हो गया है। माइलेज की बात करते हैं, ये 15 हो गया है। LTC डिपेंडेंसी इनकम 9000, उसे कैलकुलेट किया जाएगा। LTC रूल 3 गवर्नमेंट ऑफ गजेट ऑफ इंडिया पे इसका चर्चा किया गया। LTC होम टाउन चेंज अलाउड वंस इन इंटायर सर्विस। LTC EL encashment per occasion 10 days। LTC maximum EL encashment career 60 days। LTC minimum EL balance 30 days। ये सब कहाँ आते हैं? LTC रूल में आते हैं। LTC advance maximum 90% of the estimated fare to and fro, onward journey को भी इसमें इंक्लूड कर दीजिए। LTC ट्रेन एडवांस इन अर्लीस्ट ड्रॉल, ये मैंने आपको बता दिया है, दोनों ऑप्शन बता दिए हैं। 65 125 डेज एज पर द रेलवे रिजर्वेशन provision। LTC claim without advance 3 months। LTC claim with advance 1 month। Penal interest on unutilized LTC advance 2% over GPF interest। LTC carry forward period within first year of the next block, केवल first year of the next block में वो कन्वर्ट होगा। यदि आपने वहां पे ले लिया तो ले लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया। जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ ईस्ट रीजन स्कीम वैलिडिटी कब तक है? 25 सितंबर 2026। कौन ये कहता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का ऑफिस मेमोरेंडम ऐसा कहता है। प्रिंसिपल स्पेंडिंग पावर VBN नो VMC 25,000 पर लिमिट। KVS अकाउंट कोड आर्टिकल 183 इनहेंसमेंट वाला पार्ट याद रखिएगा, ये वाला जो मैंने रूल बताया है 183, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आप पढ़ लेंगे, ये डेट्स मैं बता चुका हूँ। बजट BNC अप्रूवल डेडलाइन 16, बजट सबमिशन टू RO 31 अगस्त, एंड कंस्ट्रक्शन प्रपोजल टू डेप्यूटी कमिश्नर 31 of July। that talks about it is spoken in CS 70। KVS अकाउंट कोड ऐसा कहता है। रीअप्रोप्रिएशन असेसमेंट 20 फरवरी तक हो जाना चाहिए, KVS बजट गाइडलाइन ऐसा कहता है। ग्रांट लैप्स डेट 31 मार्च को लैप्स हो जाएगा, GFR KVS रूल कहता है। इसमें अप्रैल सैलरी ऑफ मार्च पेड इन अप्रैल नेक्स्ट ईयर में काउंट हो जाएगा। RTI रिस्पॉन्स टाइम 30 days and 48 hours फॉर लाइफ एंड लिबर्टी, RTI एक्ट 2005 ऐसा कहता है। पॉस कंप्लेंट टाइम लिमिट क्या है? 3 months फ्रॉम इंसिडेंट, पॉश एक्ट 2013 ऐसा कहता है। पॉस इंक्वायरी कंप्लेन विद इन 90 days, कौन ऐसा कहता है? पॉश एक्ट 2013 ऐसा कहता है। दोस्तों अंतिम पड़ाव, क्विक रिकॉल कोड 6, 10, 30, 60, 80, 90, 125, इन सभी डेज को, टाइम को याद रखिए। ये क्या है? 2 मिनट में बता देता हूँ। 6 क्या है? 6 days प्रिपरेशन ज्वाइनिंग टाइम, 10, 12, 15 याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू दैट। 10 days क्या है? 6 के बाद 10 दिया हुआ है। 10 क्या है? 10 days EL encashment पर LTC, 10 days फॉर टिकट प्रोडक्शन आफ्टर एडवांस। 30 क्या है? 30 days मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम, 30 मिनिमम EL बैलेंस शुड बी देयर। 30 के 2 रेफरेंस है। उसके बाद में 60 days टू TA क्लेम, 60 days मैक्सिमम EL encashment इन करियर, दोनों चीजें। 80% CTG रेट ऑन ट्रांसफर, 90% मैक्सिमम LTC एडवांस, 90 days लीव लिमिट फॉर एडवांस। दोस्तों यदि ये बात अच्छी लग रही तो डेफिनेटली यू शुड press the like button and don't forget to put your comment as feedback. For 1 continuous hour I have been speaking to you, producing the fact and figure, and it is not 1 hour, it has taken 24 hours or more than that to bring this 1 hour. And there is only one way to appreciate the effort, that is to put your comment, because we are not in direct communication to each other. So this is the only medium we can communicate to each other. As I have been communicating to you for an hour, I hope it is your sheer
I don't say responsibility, but obligation to write few lines saying how did you like it and what are the shortcomings so that I can improve it in the forthcoming videos. Exam strategy की हम बात करते हैं दोस्तों. Memorize all numerical values in master table above. For MCQs on LTC family, always eliminate married son, married brother, parents-in-law. इनको eliminate करेंगे. For TA, remember VP level 10, grade 3. For budget, the VNC date 16th August, 31st August are extremely commonly tested. For FR, the spirit of FR 11, absolute availability, and FR 44, no profit from allowances are favorites. ये कमेंट है दोस्तों, ये मेरी मेहनत है. फॉर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स ऑलवेज कोट रूल्स, FR/SR नंबर या लिमिट अगर आपको मालूम है, या अथॉरिटी यदि आपको मालूम है. और सबसे अंत में दोस्तों केवल ये 4 लाइन मेरे द्वारा आपके लिए. दिस 4 लाइन आई जस्ट वांट टू से यू व्हाट इज दैट. सी, फाइनल एडवाइस फॉर यू ऑल, always refer to the latest Department of Personal Training Office Memorandum and KVS account code for any update. For LTC, the current 4-year block is 26-29 and 2-year block is 26-27. The PDF correctly mentions this. For TA, the 7th CPC rates are still valid. No major revision is done after 2017. And friends, don't forget to subscribe the channel if you are preparing for KVS LD preparation notes you want to get by them. Thank you friends for watching this video. I hope you have been benefited being an hour with me. Thank you. Have a nice day. See you in the next video. Till then, good day. See you for the next video. Bye bye.